We will be continuing with the same topic that we started yesterday. It was the examination of newborn at the time of birth. This is the second part of that lecture. Just a quick recap of what we have discussed yesterday. Anyone? First was what is the objective of doing this newborn examination. Second was the time of examination. Third was what are the steps you will follow for newborn examination. Fourth was the assessment of pulmonary status and ventilation. What were the four steps in this? First was, anyone? You must have taken notes. First was cry of the child, cyanosis, respiratory rate, then Apgar score, Silverman's score, Downey's score. These were all for the assessment of pulmonary ventilation and the respiration. Then we started discussing the congenital abnormalities which may be present at the time of birth. One was CDH, congenital diaphragmatic hernia. Second was imperforate anus. Third was ambiguous genitalia. And fourth was single umbilical artery. Fifth was single palmar crease. Very good. And now we will continue with that hypoplasia of the depressor anguli oris muscle. This muscle is in the cheek. Just try to understand, then you will remember. Let us say this is the nasolabial fold. What is this? Nasolabial fold. This gets formed because of the tone of the muscle. It contracts as you make any posture of their mouth, cry or smile, right? So it contracts. It has got its own tone. So that is why this figure is there. Now let us say this muscle is hypoplastic. Congenitally ये मसल बना नहीं, ज़्यादा नहीं बना, राइट? उसका हाइपोप्लेजिया मीन नॉट फुल्ली फॉर्म्ड. तो व्हाट विल हैपन? दिस nasolabial fold will not be there, it will be flat. This side will look as if there is no expression on this. It will be pulled towards down. क्योंकि इसमें मसल ही नहीं है तो मसल कोई अपनी एक्टिविटी कंट्रैक्शन नहीं कर रहा. इज इट क्लियर? नाउ एज द चाइल्ड विल क्राई बट दिस साइड मसल इज एक्टिंग, दिस इज नॉर्मल. एज द चाइल्ड विल क्राई दिस मसल विल कंट्रैक्ट. इज इट क्लियर? क्लियर अप टिल नाउ? शुड आई रिपीट? दिस मसल विल कंट्रैक्ट. सो व्हाट विल हैपन? द माउथ विल शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड क्योंकि ये कंट्रैक्ट हुआ. इस तरफ कोई उसको अपोजिंग एक्शन वाला नहीं है, राइट? सो देखने में ऐसे लगेगा कि माउथ इस तरफ ऐसे टेढ़ा हो गया, इस तरह. एंड यू विल सी कि देयर इज़ सम डिफेक्ट ऑन दिस साइड. एक्चुअली इस साइड में डिफेक्ट नहीं है. डिफेक्ट कहाँ है? इस साइड में, जो कि this is happening because of the unopposed action from other side, right? So what will happen? You can note down in the hypoplasia of the depressor anguli oris muscle during cry, angle of mouth and mandible, they are pulled down. वो नीचे को खींचेंगे with flattening of the nasolabial fold on the affected side due to the unopposed action of depressor anguli oris. Clear? Should we move forward? Anyone who needs repetition? Second is patency of the natural orifices. कौन कौन से natural orifices are many? Nose भी है, right? Mouth भी है, but common जो
पेटेंसी आपने चेक करनी है, वन इज ऑफ द ईसोफेगस। हाउ विल यू check the patency of esophagus? Anyone? As you will insert the infant feeding tube from the mouth to the stomach of the child, ऐसे ही जैसे आप ट्यूब डालेंगे तो if the tube stops, यहाँ पे आके अटक गई तो उसके आगे जा ही नहीं रही ट्यूब, राइट। दिस मीन्स कि शायद स्टमक उसके esophagus में there is some block in the orifice, or sometimes there can be fistula also, tracheoesophageal fistula, TO fistula. This is a common malformation. You note down TO fistula. So if this abnormality is there, the infant feeding tube will get kinked इन बिटवीन, सीधा जाने के बजाय वहीं ऐसे मुड़ जाएगी। तो यदि आप एक्सरे करोगे तो उसमें ये क्लियर नज़र आएगा कि आगे ट्यूब नहीं जा रही। देन एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग में क्या हो सकता है, वन इज के इम्परफोरेट, एनल ओपनिंग नहीं है, कल भी मैंने बताया था, राइट। एक एग्ज़ाम्पल भी दी थी मैंने आपको, रियल एग्ज़ाम्पल, जब हम ड्यूटी किया करते थे। और इट कैन बी एक्टोपिक आल्सो। एक्टोपिक मीन्स नॉर्मल पोजीशन, यू नो, आई डोंट नीड नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। इफ इट इज स्लाइटली एंटीरियर टू, पीछे से आगे को है ओपनिंग, दैट वी विल कॉट कि उसकी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, एक एक्टोपिक है पोजीशन, राइट। तो जो नेचुरल ऑर्फिस हैं वो इम्परफोरेट भी हो सकती हैं और एक्टोपिक भी हो सकती हैं। ऐसे ही विजाइनल ओपनिंग, समटाइम्स देयर इज ए इम्परफोरेट हाइमन, सो इनिशियली इट इज़ नॉट डिटेक्टेड ओनली unless examination is done, and as the girl starts menstruating, then it is brought into the notice by the parents to the doctor, क्योंकि वहाँ पे swelling होने लग जाती है, there is no menstrual discharge due to the imperforate anus, right. Urethral opening, urethral opening में भी it can also be ectopic, जैसे मेल्स में है तो टिप पे है, यू नो, ओपनिंग। इफ टिप के नीचे है या इसके नीचे है तो दैट इज़ एन एक्टोपिक ओपनिंग, राइट। देन व्हाट एल्स कैन बी देयर इन दीज न्यू बॉर्न, देयर कैन बी मिड लाइन लीजन। मिड लाइन क्या है बॉडी की, दिस इज द मिड लाइन, एंटीरियर, ये पीछे वाली पोस्टीरियर। तो क्लेफ्ट लिप के लिप, यहाँ पे आपने देखा भी होगा किसी किसी का, कैसे जो लिप है वो बाइफिड है, फटा हुआ है, क्लेफ्ट, वी कॉल इट क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप के साथ कई दफ़ा क्लेफ्ट पैलेट भी होती है, जो आगे वाली आपकी पैलेट है कई दफ़ा वो भी बाइफिड होती है। अलोन कैन बी के क्लेफ्ट लिप हो, अलोन क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, और दोनों क्लेफ्ट लिप भी है पैलेट भी है तो एक ही बच्चे को। इन बच्चों में there is a lot of problem regarding the feeding, and in later life many cosmetic problems they also occur. Then spina bifida, पीछे आपके स्पाइन है उसमें गैप होगा तो we will call it spina bifida. मेनिंगोसील, मेनिंगोसील के मेनिंजेस ही डिफेक्ट है, उसके थ्रू मेनिंजेस आ रही हैं, और इट कैन बी मेनिंगोमाइलोसील, ब्रेन का हिस्सा भी कुछ बाहर आ रहा है, एज जस्ट लाइक ए ट्यूमर। यदि आप ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे यू विल सी दीज केसेस एंड देन यू विल बी अवेयर ऑफ दिस, मेनिंगोसील और मेनिंगोमाइलोसील। नेक्स्ट इज नोट डाउन करते रहिए, पाइलोनाइडल साइनस। पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है, जैसे ही आप पीछे अपने थोड़ा फिंगर लगाएंगे तो यू विल फील के यहाँ पे सेक्रम आ जाता है, एंड जिसको टेल बोन भी कहते हैं इन द कॉमन लैंग्वेज। इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे कई दफ़ा देयर इज़ ए स्मॉल होल एट दैट प्लेस, एनल ओपनिंग नहीं, वैसे ही होल होता है, दैट इज़ कॉल्ड
pilonidal sinus. It can also cause problems, right? हाइपोस्पेडियसिस, हाइपोस्पेडियसिस मैंने बता दिया कि यदि पीनस की ओपनिंग यहाँ पे नहीं है, इसके नीचे आ रहा है, तो हाइपोस्पेडियसिस होगा। एम्बिगुअस जेनिटेलिया दैट वी talked about yesterday, we will discuss in detail also. I will try to explain how these children, they are affected due to the chromosomal abnormalities or the genetic malformation. Examples and bifid uvula. uvula माउथ में जो uvula है वो भी कई दफ़ा bifid हो सकता है। और देयर कैन बी सबमिकोजल क्लेफ्ट पैलेट। ये क्या हुआ, ये तो क्लेफ्ट पैलेट है, ये सबमिकोजल। व्हाट हैपन कि जो पैलेट है आपके माउथ में उसमें गैप है, राइट, लेकिन ऊपर से मिकोजल लेयर इंटैक्ट है। आपको यदि आप मुंह खोल के देखोगे, अकेली क्लेफ्ट पैलेट है तो आपको दिखेगा कि इतना बड़ा गैप है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर से झिल्ली है मिकोजा की, आपको इतना क्लियर नहीं नजर आएगा अनलेस यू विल डू द डिटेल्ड एग्जामिनेशन बाय सम इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो दीज कैन बी सो मैनी मिडलाइन डिफेक्ट्स इन द न्यूबॉर्न। देन बर्थ इंजरीज। बर्थ इंजरीज क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर कैन बी सम बर्थ इंजरीज। सो दिस विल बी, देयर इज ए सेपरेट चैप्टर फॉर दिस, वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर। देन एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री में क्या है, वेट है, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एंड क्राउन हील लेंथ। वट क्या है, ये क्या है, क्राउन हील लेंथ। मैंने उस दिन दिखाया था आपको इन्फेंटोमीटर, जिसमें बच्चे को लौटाते हैं, तो एक तरफ बच्चे का सिर आ गया, उसको क्राउन, और दूसरी तरफ हील आ गई, तो जो इन बिटवीन स्पैन आ गया उसको हम कहेंगे क्राउन हील लेंथ। Now the vital signs of the child. You have to note down the heart rate. Heart rate normal कितना होता है, 120 to 160. Normal adult में कितना होता है, only 80 to 100. इन बच्चों में इतना बड़ा होता है। Respiratory rate can be 40 to 60. And temperature, speak out, 36.5 to 37.5 degree Celsius. It is Celsius. Blood pressure 60/40 and CRT less than 2 seconds. What does this mean? Explain करे कोई बच्चा इसको? Any student who can explain it? CRT. I told you the capillary refill time. If you press on your nail and release it, just press and count 3, 2, 1. ट्राई डू इट। एक स्टूडेंट यहाँ पे आए एंड एक्सप्लेन इट टू द अदर। ऐसे प्रेस किया तो ब्लैंच हो गया जी, इसमें से ब्लड सप्लाई रुक गई। अब 3, 2, 1, इवन बिफोर यू रीच 1 इट गेट्स फिल्ड अप टू द पिंक कलर, राइट। सो इन बच्चों में लेस देन 2 सेकंड है। यदि ये ज़्यादा आ रहा है तो दिस मीन्स के प्रोबेबली बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन affected है। Then the neonatal reflexes. There are so many neonatal reflexes that need to be tested, but at the time of birth, when you are doing the examination of newborn, then these 3 reflexes must be tested. What is Morrow's, rooting and sucking. This we will also discuss in the neonatal reflexes chapter. So meanwhile, if you want to ask, you can ask. Okay, thank you.